السلام علیکم۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمرہ احمد کا ناول بالا کی ایپیسوڈ 17 کا پارٹ 4 ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بلد کی وہ فروزی عمارت دوسری عمارتوں سے کندھے ملائی کھڑی تھی۔ ناشتے اور قہووں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ البتہ باتوں نے آج سورج کا راستہ روک رکھا تھا۔ ہر چند منٹ بعد بوندا باندی شروع ہو جاتی جو بارش میں تبدیل نہ ہو سکی تھی تو دم توڑ جاتی۔ ٹو کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لانگ روم کی میز پر لیپ ٹاپ رکھے سامنے آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ بہت سی ای میلز کھلی رکھی تھی۔ ماہر فرید کو اس نے اس تنتنے سے کہہ دیا تھا کہ وہ یورپ اور امریکہ میں کوئی سرما میں شادی نہیں کرتا، لیکن اب اسے میڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہونے والے ایونٹس اور شوٹ بیک اپ فوٹوگرافرز کے حوالے کرنے تھے، بہت سے پیسے واپس کرنے تھے، سارا کام الجھ گیا تھا۔ اسی وقت ٹو سنائی دی۔ میز پر رکھے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ ابرو بے اختیار استجابیہ انداز میں اٹھے۔ ماہر فرید۔ کل اس نے شبنم سے فون کروایا تھا، راج خود واٹس اپ کیا تھا۔ اس نے اتنے برس نمبر نہیں بدلا تھا اور نہ ماہر نے۔ بس اس نے استنبول آنے کے بعد ماہر کو اپنے واٹس اپ سے ان بلاک کر دیا تھا۔ انا پہ ایک قدم اور سے۔ میں 5 منٹ میں تمہارے اپارٹمنٹ بلڈنگ پہنچ رہا ہوں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ساتھ اگلے میسیج میں تو سی موصول ہوئی 4 منٹ میں۔ وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے تیزی سے اٹھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا لیکن نہیں۔ کل آفس میں ملاقات کے بعد سے اب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اب اچانک جلدی میں لباس تبدیل کیا، چہرے پر چند چھینٹے مارے۔ میک اپ کا وقت نہیں تھا۔ ٹینٹ کافی تھا۔ بال برش کر کے اونچی پونی میں باندھے، پھر اپنا عکس دیکھا تو یوں ہی سبرینا کی اونچی پونی یاد آئی۔ نفی میں سر جھٹکا اور پونی کھول دی۔ انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا۔ موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ اسکرین دیکھے بنا تیزی سے بیگ اور کوٹ اٹھائے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ آخری زینے پر تھی جب کھلے دروازے کے باہر وہ اسے دکھائی دیا۔ وہ رنگین عمارتوں کی قطار کے سامنے سڑک کنارے موجود تھا۔ کار کے ڈرائیونگ ڈور کے ساتھ کھڑا، پیروں کی کینچی بنائے، سر جھکائے موبائل پر بٹن پریس کر رہا تھا۔ لباس وہی کل کے جیسا تھا۔ گہرا سرمئی سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی نداد۔ البتہ اس نے اوپر کوئی زائد کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شاید اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ زینے سے اترتی چوکھٹ سے باہر نکلی۔ ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ قدرے ناخوش نظر آتی تھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے، سفید ہائی نیک پہنے جس کی گریبان پر سیاہ فاختہ جگمگا رہی تھی، ماتھے پر مبہم سا بل۔ آج تم نے ڈرائیور نہیں بھیجا؟ پلکیں چپکا کے بجائے سادگی سے پوچھا تھا۔ میرے ڈرائیور کے پاس کرنے کے لیے زیادہ اہم کام ہے، خوش روی سے کہہ کے اس نے اپنا دروازہ کھولا تو مالا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار کے اندر وہی بھینی بھینی سی خوشبو تھی، لیکن یہ کل والی خوشبو سے مختلف تھی۔ بلکہ نہیں، یہ کار بھی مختلف تھی۔ خیر اسے کیا، وہ بیگ اور کوٹ پچھلی سیٹ پر رکھ کر اب سیٹ بیلٹ پہن رہی تھی۔ جہاں تمہیں استنبول آتے ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اسے دیکھے بنا کار سٹارٹ کر رہا تھا، ایک سرد مجسمہ ہو جیسے بیزار ناخوش۔ ہاتھ بیک ویو مرر کی طرف بڑھا لیکن جلدی سے اسے کھینچی۔ ایک بھولی بسی عادت یاد آئی جب وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی تھی اور وہ مرر اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا۔ مالا مزید کچھ پوچھے بنا آئینے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ صبح اٹھتے سال ہی کافی نہیں پیتی تھی، کچھ دیر انتظار کرتی تھی۔ بدر کے کھونے کے بعد ہر روز صبح خود کو بستر سے نکالنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ آج بھی سستی سے بیٹھی ای میل چیک کرتی رہی تھی۔ کافی لینے نیچے آنے کی ہمت ابھی اس نے کرنی تھی۔ اپارٹمنٹ میں کافی مشین نہ تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی آن بورڈ ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ دائیں بائیں بہت سے کیفے اور قہوہ خانے گزرے۔ بند شیشوں کے باعث کافی بیز کی خوشبو اندر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑی پیالوں سے اڑتی بھاپ دیکھ سکتی تھی۔ کیفین کی کمی کے باعث سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ڈرائیو کرتے ماہر نے کن انکھیوں سے دیکھا۔ وہ گردن اس کی جانب سے موڑے، دو انگلیوں سے کن پٹی کو دبائے ہوئے تھی۔ کیا اس کے سر میں درد تھا؟ لیکن پوچھا نہیں۔ وہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کو بہت سے سر درد دے چکی تھی۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو وہ چونکی۔ ترکش میں لکھے الفاظ عام فہم تھے، پولیس اسٹیشن۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا، بس ایک نگاہ اس پہ ڈالی جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو، اور دروازہ کھول دیا۔ یعنی میں نے پولیس کو ای میل لکھی تھی، وہ کہنے لگی، لیکن متوجہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ کار لا کرتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بوندا باندی اب رک چکی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے کی زمین گیلی تھی۔ وہ کوٹ پہنتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ رک کے انتظار کرنے لگا۔ نگاہیں مالا کے جوتوں پہ ٹھہر گئی۔ وہاں پانی تھا، کیا وہ پھسل سکتی تھی؟ یہ جوتے مناسب نہ تھے، شاید اس نے جلدی میں پہنے تھے، اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ قریب آ گئی اور پانی پیچھے رہ گیا تو وہ چلنے لگا۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی،
اسٹیشن اندر سے گرم تھا، سفید دیواریں، لمبی راہداریاں، بہت سی آوازیں، یونیفارم میں پھرتے لوگ۔ چند راہداریوں سے گزر کے وہ ایک جگہ آن رکے۔ ماہر نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ تم بیٹھو، میں پہلے کومسار بے سے الگ ملوں گا۔ کیوں؟ وہ بیٹھی نہیں، ابرو کٹھے کر کے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ گیا۔ ایک پولیس افسر اسی طرف آ رہا تھا، وہ رک کے غیر شناسا زبان میں اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ سر ہلا کے اسے ایک طرف لے کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ مشکوک نگاہیں ہنوز اس راہداری پر جمی تھی جہاں سے وہ مڑا تھا۔ وہ اس کو کیوں ساتھ لے کر نہیں گیا؟ ایسی کیا بات کرنی تھی پولیس کمشنر سے جو مالا کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ او ماہر فرید، تم اور تمہاری آدھا سچ چھپانے کی عادت۔ اور تب اس کی نگاہ دوسرے کونے پر پڑی۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی مشین۔ ماتحت نے دستک کے بعد دروازہ دھکیلا تو ایک روشن دفتر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ مرکزی کرسی پہ بیٹھا پولیس کمشنر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنجیدہ نگاہیں ماہر کے چہرے پر تھی اور وہ دراز قد اور کسی باڈی بلڈر جیسے بازوؤں والا شخص تھا جس کے چہرے پر سیاہ مونچھیں تھیں۔ باش کومسار چنگیز، ماتحت نے اطلاع دی، پھر بازو بڑھا کے اسے اندر جانے کو کہا۔ ماہر نے اندر قدم رکھا تو ماتحت باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو راہداری سے آتا شور بھی تھم گیا۔ جی ماہر بے بیٹھی، اس نے جذبات سے عاری انداز میں سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود واپس بیٹھا۔ آپ نے اپائنٹمنٹ لی تھی؟ آپ کو کوئی اہم کام تھا؟ ماہر ابھی تک کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، بیٹھا نہیں۔ چنگیز، وہ دھیرے سے بولا، میں سن رہا ہوں۔ وہ ٹھہرا۔ چائے، ایک کعوہ؟ میں ایک پرانے دوست کے پاس آیا ہوں چنگیز۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ انا پر دونوں قدم رکھ دیے۔ جواباً چنگیز کے تاثرات میں دراڑ پیدا ہوئی، دونوں ابرو استجاب سے اٹھا دی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ چنگیز، پلیز۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو جانتا ہے۔ ماہر بھی، اس کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ میرا وہ دوست جسے میں نے گرفتار کیا، وہ دوست جس نے مجھ سے اہم باتیں چھپا کے مجھے استعمال کیا اور پھر جج کو خرید کے مجھے رسوا کیا۔ مبینہ طور پر وہ ہلکا سا مسکرائے اور کرسی کھینچی۔ چنگیز کی رنگت قدرے سرخ ہوئی، پھر لب بھیج کر بہت سا ضبط کیا۔ کیا چیز آپ کو مجھ ناچیز کے پاس لے آئی؟ حیات، زندگی۔ وہ مسکرا کے بیٹھا، کندھے جھکائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ چنگیز انہیں کینا تو اس نگاہوں سے اسے دیکھا گیا۔ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ حکومتوں کی ریڈ ٹیپ عبور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو میں نے وہ کیا، مبینہ طور پر زور دیا، جو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کرنا تھا۔ تم نے وہ کیا جو تمہیں اپنے کیریئر کے لیے بہتر لگا۔ میں صرف اپنی جاب کر رہا تھا اور اپنے ہی دوست کو گرفتار کرنا بجائے اس پر بھروسہ کرنے کہ تمہاری جاب کے لیے اچھا تھا۔ یہ مت کہنا تم اس شے کا خیال نہیں آیا تھا۔ ماہر نے قدرے بے پرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ چنگیز اب سے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے وہ کیا جو میرے لیے ضروری تھا، تم نے وہ کیا جو تمہارے لیے ضروری تھا۔ زندگی نا انصاف ہے اور شفاق بھی۔ آج مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ حالانکہ تمہارے پاس بہت پیسے ہے، تم کسی کے پاس بھی جا سکتے ہو، لیکن کیا وہ تفتیشی افسر اتنا جرأت مند ہوگا کہ اپنے ہی دوست کو گرفتار کر سکے؟ چنگیز نے آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ویسا ہی تھا۔ سوشل میڈیا پر کبھی کبھی وہ اسے دیکھ لیتا تھا، کبھی کسی محفل میں اس کا ذکر سن لیتا تھا۔ چنگیز کو ان 4 برسوں میں ترقی نہیں ملی تھی، البتہ تبادلے بہت ہوئے تھے، لیکن 1 سال سے وہ استنبول واپس آ چکا تھا۔ البتہ اس نے نمبر چند ماہ پہلے بدلا تھا۔ ماہر نے اس سے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ نیا نمبر نہیں تھا اس کے پاس، لیکن انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتا تھا۔ اب اچانک وہ اس کے سامنے تھا۔ کیا یہ اس کا اصلی چہرہ تھا یا بزنس فیس؟ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ ماہر فرید ہلکا سا مسکرائے، کندھے جھکائے۔ کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم ڈونر ہوں۔ چنگیز کی حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی، البتہ اس نے سر کو خم دیا۔ کہیے ماہر بے، کیا مسئلہ ہے؟ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ میں کسی کو ساتھ لائی ہوں، اس کا بیٹا کھو گیا یہیں استنبول میں، وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کون؟ ماہر نے بظاہر چہرہ پرسکون رکھتے ہوئے تھوک نکلا، کشمالہ مبین۔ چنگیز کے چہرے پر چونکنے کا تعصب رہا، لب او میں سکڑے۔ وہ قدرے پیچھے ہوا، میز سے کونیاں اٹھا دی۔ تم میرے پاس اس لیے نہیں آئی کہ میں جرأت مند ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا۔ پہلی دفعہ مسکرائے، الفاظ میں کاٹ تھی۔ میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ تم بہت سے جوابات جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ ہم مل کے تلاش کر لیں گے۔ چنگیز فوراً اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی صحیح کہہ رہا ہو۔ تم زارا سے شادی کر رہے تھے نا؟ کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مدد کیوں؟ کیونکہ اب مجھے اس کے اپنے قریب ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ باش کومسار چنگیز نے بغور سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟
क्या वो वाक़ई अपनी एकतरफ़ा मोहब्बत से मूव ऑन कर चुका था? वो इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ तब कर सकेगा जब वो इस लड़की को इसके साथ बैठे देखेगा। कोई मर्द अपनी मोहब्बत यूँ नहीं छुपा सकता। तुम्हारे ख़्याल में किसने उठाया उसका बेटा? रिसीवर उठाते हुए उसने पूछा। ज़िया सुल्तान ने, यानी बच्चे के बाप ने। वो चौंका। फिर तुम पुलिस के पास? मैंने कई बरस पहले इससे मदद का वादा किया था, इसको उसके शौहर की कसम खाने का वादा नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस केस का अंजाम क्या निकलेगा। वो बच्चा अपने बाप के पास है और वो इसी के पास से बरामद होगा। मैं ये सिर्फ कश्माला की तसल्ली और अपने वादे के लिए कह रहा हूँ। वो नाम लेते हुए माहिर फरीद के तासरात नहीं बदले थे। चंगेज़ को इसके तासरात क्या थे? अस्पताल के कमरे में लेटे टांग की तकलीफ़ के दौरान भी, बीरबल के किस्सों के दौरान भी। इस एक नाम पर इसकी आंखों में कुछ दिखाई देता था। अब वो वहाँ नहीं था। क्या वो वाकई आगे बढ़ चुका था? इसने रिसीवर पर चंद अल्फाज कहे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वो दिखाई दी। ज़िया सुल्तान की बीवी, जिसकी तस्वीर वो कई दफ़ा मुख्तलिफ मौके पर देख चुका था, जिसके किस्से वो बीरबल से सुन चुका था। वो पहले जैसी थी। बाल छोटे थे, चेहरे पर शफाफियत थी और हाथों में एक डिस्पोजेबल कप जिससे भाप उड़ रही थी। मैं कशमाला मुबीन हूँ। वो साथ वाली कुर्सी पे बैठी और कप सामने रखा। माहिर ने एक निगाह कप पे डाली और फिर निगाहें तिरछी करके इसका नीम रुख देखा। कानपट्टी मुसलसल से हिलाने से अभी तक सुर थी। वो सामने देखने लगा। जानता हूँ। चंगेज़ ने एक सुमैनी निगाह माहिर पर डाले, फिर वापस उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अगर बच्चा वैनकूवर में खोया है तो आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि उसने अपने पासपोर्ट पर इस्तांबुल का सफ़र किया है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ईमेल लिखी थी। उन्होंने वैनकूवर में लाश मिलने के वाक़ये के बायस इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा यहाँ खोया है। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। एक नज़र माहिर को देखा जो सामने देख रहा था, और माहिर बे की मदद लेनी पड़ी। कुछ नागवार सा था उसके लहजे में। चंगेज़ ने गौर से इन दोनों की आंखों को देखा, फिर माहिर की उंगली में पहनी अंगूठी को। वो सच कह रहा था। वो इस औरत की तरफ से पत्थर का बन चुका था, कोयले जैसा पत्थर जिसमें कोई चिंगारी न थी। अगले चंद मिनट बाद वो माला से सवालात पूछता रहा। वो कॉफ़ी के घूंटों के दरमियान जवाबात देती रही। आधे कप पे उसने कॉफ़ी छोड़ दी, फिर उसे नहीं छुआ। हमारे पास अब तक जितनी मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। माहिर पे मोबाइल स्क्रीन पर बटन दबाता कह रहा था। चंगेज़ ने गहरी सांस ली। मेरा नंबर तब दिए। साथ रखे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो वह चौंका। हाँ, माहिर, वहाँ माहिर का नाम जगमगा रहा था। तुम्हारे पास मेरा नया नंबर था? उसकी आंखों में पहली दफ़ा कुछ इब्रत, ज़ख्मीपन, शिकवा। माला ने बगौर उसकी आंखों में देखा और फिर माहिर को। वो मोबाइल जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। हर चीज़ नंबर्स की गिरद ही घूमती है ना कौमसार पे। वो हल्का सा मुस्कुराए और उसे उठने का इशारा किया। मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। चंगेज़ की आंखों का तासुर गायब हो गया। अब उसकी जगह रस्मी संजीदगी ने ले ली। जब वो बाहर निकल गया तो उसका मातहत अंदर आया। आधा खाली कप उठाया जिसके दहाने पर लिपस्टिक का निशान था, और एक नज़र चंगेज़ पर डाली। ये माहिर फरीद था ना, वही दोस्त जिसको आपने गिरफ्तार किया था? उसने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की और वहाँ दिखाई देते अपने व्हाट्सएप वेब पर वो फाइल खोलने लगा जो माहिर ने उसे भेजी थी। फिर वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि उसे लगता है कि वो अब भी मुझे कंट्रोल कर सकता है। फिर आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, वो भी एक सर्द केस के लिए? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का डोनर है। लातल्की से कहते हुए वो कीबोर्ड पर चंद कीज दबाने लगा। बाहर धूप की चंद किरणें किसी न किसी तरह बादलों का हल्का तोड़ के ज़मीन तक आ पहुंची थी। शाम सी सुबह में चंद सुनहरी धारें आसमान से गिरती दिखाई देती थी। एक धार माहिर की सियाह कार पर भी पड़ रही थी। वो दरवाज़ा खोल रहा था जब माला करीब आते हुए बोल उठी। वो तुम्हारे साथ इतना तल्ख क्यों था? माहिर ने नकाब उठा के उसे देखा। हाथ हैंडल पर रुक गया। क्योंकि उसने ज़ियाद के बनाई केस में मुझे गिरफ्तार किया था। नाराज़ तो तुम्हें होना चाहिए था, मगर वो था। सब आंखें मशकूक अंदाज में छोटी की हुई थी। माहिर ने जब्त से गहरा सांस लिया। जब तक वो जवाब नहीं देगा वो कार में नहीं बैठेगी। मैंने केस के दौरान उसे चंद मालूमात छुपाई थी और फिर अदालती कार्रवाई में भी चंद बातें हुई थी। ओह! कशमाला मुबीन के चेहरे पर खुशगवार हैरत भरी मुस्कुराहट उभरी। यानी दुनिया में दूसरे लोग भी हैं जो तुम्हारी हकीकत छुपाने को गलत ख्याल करते हैं। उसने पलकें चिपकाई। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुझ पर भरोसा ना करने की गलती करते हैं। किसी को किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। वो अंदर बैठ चुकी थी जब वो कह उठा। हम कॉफ़ी के लिए रुक सकते थे अगर तुम मुझे बताती। मुझे बदर के लिए तुम्हारी मदद के सिवा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो इसी संजीदगी से कहते हुए सीट बेल्ट बंद करने लगी। माई ने सर झटका और बटन दबाया। इंजन में हरारत पैदा हुई। मैं तुम्हें ब्लड ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला जाऊँगा। चंगेज़ खुद। क्या तुम मुझे बीरबल की बेकरी पर ड्रॉप कर सकते हो?
मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। ओके, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। माला ने सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। इनके दरमियान सारा रास्ता कोई बात नहीं हुई। बेकरी यहाँ से 12 मिनट की ड्राइव पर थी, मगर रश के बायस ज़्यादा वक्त लगा। कार पार्किंग लाइन में रोकते हुए माहिर ने इंजन ऑफ किया। मुझे मालिक से मिलना था, वो यहीं है। जैसे अपने अमल की वजाहत दी। वो इसके लिए यहाँ नहीं आया था, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था। वो इसकी मदद कर रहा था, यही बहुत था। नशाताशी में बनी वो गुलाबी फूलों से सजी बेकरी पहले से कदरे मुख्तलिफ थी। वो शीशे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई तो खुशबूदार गम हवा चेहरे से टकराई। सोफ़े बदले हुए थे, ब्रास का नया और कीमती फर्नीचर, नया डेकोर, वही रंग, एक जीना जो ऊपर को जाता था। माला ने गर्दन उठा के देखा, वहाँ ऊपर भी एक सीटिंग एरिया बना था, जो पहले वहाँ नहीं था। वहाँ से मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह जगह यकीनन अब बनी थी, तोसी नई तामीर, दिलचस्प। मरहबा। इसी वक्त बीरबल जीने उतरता दिखाई दिया। सफ़ेद जॉगर, स्वेट पैंट, ऊपर हुडी पहने, कोई बहुत तेज़ सा परफ्यूम लगाए हुए मुस्कुराता हुआ आ रहा था। इन दोनों को साथ साथ देख कर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं समझा तुम अकेली होगी, लेकिन माशाल्लाह ड्राइवर भी साथ आया है। माहिर पे कोई असर ना हुआ। अबरू उठा के एक लफ्ज़ से इस्तफसार किया, मालिक। बीरबल का मुंह कदरे बन गया। तुम्हारा महबूब ऊपर मीटिंग कर है, 90 मिनट के लिए बेकरी बंद करवा दी है। सारा बिल इसके खाते से कटेगा। माला को एक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए वो बता रहा था। अच्छा, ये वजह थी खाली बेकरी की। मैं इंतज़ार कर लूँगा, माहिर कहते हुए इन सोफ़ों की जानिब बढ़ गया। वो नहीं बढ़ी। वहीं काउंटर पर खड़े हुए कह रहा था इसे ऑफिस जाना है, लेकिन वो मालिक के लिए इंतज़ार कर लेगा। बहुत दिलचस्प। सो कैसे राज़ी किया तुमने माहिर बे को अपना ड्राइवर बनने में? वो दोनों काउंटर पर साथ साथ खड़े थे जब बीरबल तजस्सुस भरी मुस्कुराहट से पूछने लगा। आवाज़ धीमी थी, बेकरी में म्यूज़िक भी जा रहा था। मुझे तुम्हारे भाई को ड्राइवर बनाने का शौक़ नहीं है बीरबल। माला ने गहरी सांस ली। मैं इसके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि इसने मुझसे वादा किया था। पलट के एक नज़र दूर बैठे मोबाइल पर सर झुकाए टांग पर टांग चिपकाए आदमी को देखा। वो इनकी बातें नहीं सुन सकता था, और चाहे मैं इसे कितना ही नापसंद क्यों ना करूँ, सिर्फ वही मेरे बेटे को ढूंढ सकता है। बीरबल ने कोनी काउंटर पर जमाई और आगे को झुक के मुस्कुराया। तुम इसको नापसंद इससे करती हो क्योंकि तुम इसे जानती नहीं हो। अच्छा, कौन है वो? बीरबल ने आवाज़ धीमी की। रोबोट। और वो दोनों बेख्तियार हंस दिए। सीढ़ियों से उतरते अफराद के आगे चलते माली फरीद ने इनका कहका सुना था। चौंका उस तरफ देखा। काउंटर के गिर्द बीरबल के साथ वो खड़ी थी, सब आंखों और कंधे तक आते बालों वाली लड़की। इसी पल इसकी नज़र भी इन पर पड़ी। वो शनासाई से मुस्कुरा दी। अब्दुल मालिक फरीद हल्का सा मुस्कुराया, और तभी माहिर मोबाइल जेब में डालता उठ के इस तरफ आया। मालिक। वो संजीदा था, पुरसुकून सा। कश्माला हाथ से उसकी तरफ इशारा किया, जैसे इसका तारुफ करवा रहा हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। एक गहरी नज़र माहिर पर डाली और काउंटर की तरफ आए। माहिर भी साथ ही तरफ आया। माला। इतने अरसे बाद वो कदरे हैरान थे। वो बहुत ज़्यादा नहीं बदले थे। रंगत कदरे कलमला गई थी और वज़न कम था, लेकिन ज़ात का वक़ार और बालों का सिल्वरपन वैसा ही था। खुशी हुई आपसे मेरे को, वो दिल से मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने बीरबल को सवालिया और माहिर को मशकूक निगाह से देखा। कशमाला का बेटा खो गया, वैसी संजीदगी से बोला। माला की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। ये जिक्र हर रोज़ नए सिरे से तकलीफ देता था। वो इसको ढूंढने आई है, हम इसकी मदद करें क्योंकि इसने हलाल के लिए हमारी मदद की थी। वो नर्व संजीदगी से बता रहा था, जैसे वो एक पुरानी फैमिली फ्रेंड्स थी। ये कैसे हुआ? वो चौंक के पूछने लगे। आवाज़ में हमदर्दी थी। मुख्तसरन वही रुदासन आने लगी जो अभी चंगेज़ को सुनाई थी। मालिक फरीद खामोशी से सुनेंगे। इनकी निगाह माला की हाईनेक पे झूलती स्याह फाख्ता पे चंद एक दफ़ा पड़ी। मुझे निकलना है, फिर मुलाकात होगी। अभी तो तुम यहीं हो ना? इसी बेतासर अंदाज से पूछा। से मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो आगे बढ़ के और माहिर को इशारा किया, मेरे पीछे। वो ताबेदारी से इनके पीछे चल पड़ा। वो बेकरी के शीशे के दरवाजे से बाहर निकल गया। माला पलट के इन्हें देखने लगी। अब वो दोनों बाहर ठंड में खड़े कोई बात करते दिखाई देते थे। माहिर के चेहरे पे बेजारी उभरी उकताहट थी। अलबत्ता महसूस होता था कि आवाज़ धीमी थी। वह निगाहों में तशवीश लिए इन्हें देखेगी। वो यहाँ क्या कर रही है? बाहर ठंडी फिजा में खड़े मालिक फरीद ने गौर से उसे देखते हुए पूछा था। माहिर ने गहरी सांस ली, बेजार सी सांस। इससे पहले कि तुम मुझसे वही पूछो जिसकी वजाहत दे दे के मैं तंग आ चुका हूँ। हलाल को, बीरबल, चंगेज़, यास्मीन गर्ल्स, हर शख्स को। मेरे और इसके दरमियान कुछ नहीं है। वो एक माँ है, अपना बच्चा ढूंढ रही है, और मैं इस मामले में मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी के पीछे भागता है या किसी का रोक लेकर कहीं बरस गुजार देता है। वो तल्खी से कह रहा था। वो गौर से उसे देख रहे थे। जिसे माहिर ने छोड़ दिया उसे बस छोड़ दिया। मैंने इतने बस उसकी खबर तक नहीं रखी। वो क्या करती है, कैसे और कहाँ रहती है, मुझे मालूम नहीं था।
5 दिन पहले वो खुद अचानक से मेरे ऑफिस आए और उसने मदद मांगी। हलाल की खातिर मैंने उसकी बात मान ली। और इसके आने से तुम्हारी ज़िंदगी पेचीदा नहीं होगी, वो सोचती नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं समझ नहीं हूँ मालिक, कुछ मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है या हम इनको आउटग्रो कर देते हैं। इसकी मोहब्बत मर गई थी और इसका गम भी। वो मेरे लिए सिर्फ बदर की माँ है। वो बदर जिसकी हलाल को बहुत ज़्यादा परवाह है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत समझो। हल्का सा उसके कंधे को थपका और आगे बढ़ गया। शाम को ऑफिस आऊँगा और तुम भी आ जाओ, अभी जाओ। वो कुछ कहने लगा फिर रुक गया। पलट के देखा बीरबल कॉफ़ी बना रहा था। यकीनन पुलिस स्टेशन की ड्रिप कॉफ़ी उसको पसंद नहीं आई थी। वो अलबत्ता काउंटर से टेक लगाए गौर से उसे देख रही थी। मैं यहीं से पलट जाना चाहता था लेकिन माला ने ब्रूस से इशारा किया, अंदर आओ। इसकी पेशानी पर लकीरें उभरी लेकिन फिर वो ग्लास डोर खोल के अंदर आया। बीरबल की उस तरफ पूछती, वो अब उसे आंखों से इशारा कर रही थी, कहीं चल के बात करती है। माहिर ने कदर नब्बे से उसे देखा। ऐसी क्या बात? फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो बीरबल को मैं भी आती हूँ कहकर इसके पीछे होली। सीने पुर करके एक तरफ सिटिंग रूम बना था जहाँ से एक वेट्रेस मालिक के मेहमानों के खाली बर्तन सुर रही थी। दूसरी जानब रात आ रही थी, वो एक दरवाजे पर ख़त्म होती थी। माहिर ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक शोक रंगों से सजा ऑफिस था। यकीनन बीरबल का था। ये भी नया बना था। तुम मालिक से क्या कह रहे थे? माहिर ने दरवाज़ा बंद किया तो उसके सामने आ खड़ी, बाजू सीने पर लपेटे हुए, आंखें छोटी की उसे देख रही थी। यही कि तुम्हारे बेटे को ज़ियाद ने अगवा किया है, लेकिन तुम यकीन नहीं करना चाहती। उसने बेपरवाही से शानिश कहा, यह मुमकिन नहीं था कि माला तक इनकी आवाज़ें पहुंची हों। इस केस का यही इल्ज़ाम निकलेगा क्योंकि मैं लोगों के बारे में गलत नहीं होता। एक अफसोस भरी नज़र इस पर डाली। अलबत्ता कशमाला मोबील को इंसानों की पहचान नहीं है। वो इसी तरह सीने पर बाजू लपेटे तीखी नज़रों से चंद लम्हे उसे देखेगी। इंसानों की पहचान हो या ना हो, मुझे एक चीज़ की पहचान ज़रूर है। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो चौंका। जर्द रंगत और बीमारी की खुशबू। वो जहाँ था वहीं रह गया, साकित जैसे अगला सांस नहीं ले सकेगा। अब वो गौर से इसे देख रही थी। मालिक फरीद बीमार है ना? माहिर बहुत देर से शिकस्त खुर्दा सा काउच के किनारे पे बैठा और सर हाथों में गिरा दिया। चल हमें खामोशी से कट के। मैं माँ के साथ एक करसा रही हूँ। बीमारी की एक अपनी बू होती है, वो मेरे जैसों को दूर से आ जाती है। इन्हें क्या हुआ है? वो अब नरमी से पूछ रही थी। उसने सर झुकाए, कनपट्टियाँ दोनों हाथों से सहलाई। ब्रेन ट्यूमर। फिर चेहरा उठा कर देखा तो ये वो चेहरा नहीं था जिसे वो 5 दिन से देख रही थी। एक थकानशुदा शख्स का चेहरा था। एक सर्जरी हो चुकी है चंद साल पहले। इसने मुझे या किसी को नहीं बताया। बहुत तंदुरुस्त हो रहा था। फिर चंद माह पहले ये ट्यूमर दोबारा से उगना शुरू हो गया। अब सर्जरी नामुमकिन है। कितना वक्त? अल्फाज हलक में टूट गए। माहिर ने कलाई पर बंदी स्मार्ट वॉच बता रही थी कि 4 माह, शायद इससे भी कम। लम्हे खामोशी से गुजरते रहे, बिना चाप के, बिना सांसें। और इलाज? मैं इसके साथ जाता हूँ। ज़ारा और बीरबल को नहीं मालूम। वो अलग घर में रहता है। मुलाजिम हैं इसके पास। इसका डॉक्टर इसके पास आता था। चंद दिनों ये कैफ वाला मामला शुरू हुआ था जिन दिनों ये कैफ वाला मामला शुरू हुआ था। वो तल्खी से हल्का सा वो खामोश खड़ी रही। इसने मुझे कहा कि वो इसका अकाउंटेंट है, हालांकि वो इसका डॉक्टर था। वो इसको कहता रहा कि वो मुझे हकीकत बता दे। उसने नहीं बताई। वो इसीलिए चाहता था कि मैं लंदन वापस आ जाऊँ ताकि फ्रीड होल्डिंग संभाल लूँ। अगर इसे कुछ हो जाता तो सारी कंपनी हमारे सरों पर गिर जाती। कंपनी में बहुत से मसीह हैं। वो मेरे बाप की अमानत थी इसके पास। इसीलिए तुम वापस जा रहे हो। माहिर ने झुके सर के साथ इस बात में सर हिलाया। मुझे चंद माह पहले इल्म हुआ। वो बहुत अना और वक़ार वाला है। वो नहीं चाहता कि किसी को इल्म हो और लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करें। उसे अपनी कमज़ोरी दिखाना पसंद नहीं है। फिर वो घड़ी देखता उठ खड़ा हुआ। एक गहरी सांस ली। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। इसको राज रखना है। बीरबल को नहीं मालूम। हल्की सी तंबी करके पलटने लगा। जब ये राज रखने वाली बात नहीं है। माहिर चौंक के पलटा। वो इसी तरह उसे देख रही थी। उसे लगा उसने गलत सुना है। मैंने एक बात तुमसे शेयर की तो तुम इसको शेयर नहीं की। मैंने खुद भांप ली थी कि मालिक टर्मिनल पेशेंट है। वो एक कपड़े उठाकर संजीदगी से कह रही थी। तुम इतनी बड़ी बात बीरबल से कैसे छुपा सकते हो? और इसी लम्हे माहिर फरीद को उस पर ढेरों गुस्सा है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। चल मैं पहले की शिकस्ती चेहरे से गायब हो गई। गुस्से और दृष्टि से वो बोला था, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें मुदाखलत मत करो। बीरबल को भी जानने का इतना ही हक है जितना तुम्हें। तुम कब तक दूसरों की जिंदगियों का सच उनसे छुपाते रहोगे? बीरबल को ग्रीफ को प्रोसेस करना नहीं आता। तुम इसको नहीं जानती। माहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। खुदा के लिए दूसरे इंसानों को इतनी इज्जत देना सीखो। माहिर के इनके हिस्से का सच इनको बता दिया करो। बीरबल का हक है जानना। क्या मेरा हक है जानना?
बीरबल ने इसी लम्हे दरवाज़ा खोला था। हाथ में कॉफ़ी की ट्रे थी। उसने दस्तक नहीं दी थी। शायद वो इनकी गुफ्तगू के दरमियान मुखल होना चाहता था, लेकिन माला के अल्फाज ने उसे मबहूत कर दिया। चौंक के माहिर को देखा। क्या हुआ है? माए ने बेख्तियार पेशानी छुई, फिर बहुत ज़ब्त से माला को देखा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दांत पीस के वो बोला। बताओ, इसको मलामती अंदाज में कह के आगे बढ़ी और ट्रे ले ली। फिर दरवाजे की तरफ जाने लगी जब बीरबल ने बाजू लंबा करके उसे रोका। 1 मिनट, तुम यही रहो। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? कुछ उलझा हुआ, कुछ खफा लग रहा था। वो गड़बड़ा के वहीं रुक गई। ये उसने नहीं सोचा था। क्या जानना चाहिए मुझे? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो संगीन लहजे में कहता माहिर के सामने आ रुका। माहिर ने बेबसी से गहरी सांस ली, फिर कनपट्टी सलाई। सर में दर्द उठने लगा, जिसकी वजह कैफीन का नाम मिलना नहीं था। बताओ मुझे। उसकी आवाज़ बुलंद थी, चेहरा गुलाबी हो रहा था। माहिर खामोशी से लब काटता रहा। माला ने उसे ऐसे लब काटते नहीं देखा था। बैठ के मेरी बात सुनो। कोई नई शर्त छोड़ी है ना मेरे बाप ने वसीयत में? ये सब मुझसे वापस छीन लिया जाएगा, है ना? उसकी आवाज़ बेबसी भरे तय से बुलंद थी। नहीं, ये सब तुम्हारा है। माहिर ने करा के माथा छुआ, फिर गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। किन आँखों से वो उसे दिखाई दे रही थी। ट्रे पकड़े साकत खड़ी, कदरे कन्फ्यूज। मालिक मालिक बीमार है। बीरबल की आंखों में उठता तैश थम गया। इसकी जगह न समझी ने ले ली। यानी? अबरू उठाया। मालिक को ब्रेन ट्यूमर है। 4 माह है इसके पास, शायद 5। चंद लम्हों के लिए बीरबल बस उसको देखे गया। ट्रे के किनारों पर जमे आसक्ति से ट्रे में गोया धंसे जा रहे थे। क्या मतलब? वो बीमार हैं? बीरबल ने फिर से अबरू उठाया। चेहरा गुलाबी हो रहा था। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ फिर से बुलंद होने लगी। मालिक मर रहा है, माहिर ने जोर दिया। आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बीरबल पलट गया। मेज़ के किनारे हाथ रखे रुका, सर झुका के जैसे कुछ देर सोचा। क्या मतलब? वो मर रहा है? फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए पलटा। मालिक नहीं मर सकता। बीरबल, तुम दरमियान में मत बोलो। इसे देखी मैंने हाथ उठा के तंबी की। वो गहरी सांस लेके रह गई। तुम कह रहे हो कि वो अब माहिर के सामने आया? घुंघराले बालों तले पेशानी सुर्ख और बलदार थी। कि मालिक अब्दुल फरीद मालिक मर रहा है? उसकी आंखों में गुस्से से लकीरें उभरी थी। माया ने इस बात में गर्दन आया। एक बार हम खामोश ने कहा। उसके पीछे खड़ी माला पे डाली। वो रोबोट मर रहा है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो नहीं मर सकता। मैं नहीं मानता। उसने ज़ोर से पीछे दीवार पर हाथ मारा। वो बेहिस बूढ़ा, वो यूं नहीं मार सकता। उसने दोबारा दीवार पर हाथ मारा। अब वो माहिर के दाएं जानिब खड़ा था। उसने सारी ज़िंदगी उसने मुझे कहा कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। वो मुझे किसी काबिल समझता ही नहीं है। उसी दीवार से हाथ उठा के देखा। वो सुर्ख पड़ रहा था। उसने हमेशा मुझे माहिर से कमतर समझा है। ना मैं पढ़ाई में माहिर जैसा था, ना कारोबार में। मालिक भी, मेरा बाप भी, वो सब मुझे कमतर समझते थे। उसने फिर से दीवार पर हाथ मारा। और अब मुझे मेरे एहसासे मिले थे। अब मैं अपनी बेकरी एक्सपेंड कर रहा था और तुम कह रहे हो कि उसकी सिर्फ आंखों में ज़मानों की हैरत थी कि वो मार रहा है। इनमें से कोई कुछ ना बोला। वो चालाक बूढ़ा, वो क्या समझता है कि यूँ मार सकता है? वो नफ़ी में गर्दन हिला रहा था। आंखें गुलाबी पानी से भारी थी। वो नहीं मर सकता। वो अभी नहीं मर सकता। सिर्फ आंखों की उंगली उठा के गोया उसने वार्न कर रहा था। वो पहले देखेगा अपनी आंखों से मुझे कामयाब होते हुए। वो मेरे सामने आके इतराफ़ करेगा कि मैं सीने पर उसी उंगली से दस्तक दी। मैं माहिर से बेहतर हूँ कि मैं कुछ हूँ इसके लिए। पहले वो ये मानेगा, फिर मरेगा। वो ऐसे नहीं मर सकता। वो मैं नहीं मानता। नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे कोटने लगा। वो तो मन को जोकर से ठोकर मारी और दूर जा लड़का। बीरबल, उसने तासुब से बीरबल के चेहरे को देखा। इस पर आंसू गिरे थे, लेकिन अभी तक सर नफ़ी में हिला रहा था। ऐसे नहीं, मैं मरने दूंगा उसको। वो पलट कर ग्लास डोर की तरफ बढ़ गया जो बालकनी की जानिब खुलता था। उसे खोला तो ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। वो बाहर निकला और धड़ाम से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। माहिर इसकी तरफ पलटा। वो ट्रे हाथ में ले गर्दन मोड़े अफसोस से बालकनी की तरफ देख रही थी। निगाहें महसूस करके चौंका और उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात को खुद तक रखना, और तुम? शदीद गैस से उसने मुट्ठी भींची। बहुत अरसे बाद उसे किसी पर इतना शदीद गुस्सा आया था। मालिक उसका भी चचा है। ये सच जानना उसका हक था। ये तुम्हारा फैसला नहीं था। दुरुस्त माहिर, बेदुरुस्त। मेज़ पर जोर से ट्रे रखी। तुम्हारा फैसला होना चाहिए था। उसे ये सच तुमसे सुनना चाहिए था, जैसे तुम्हारा सच मुझे तुमसे सुनना चाहिए था। कैफ या इस्फूरा से नहीं। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। वो एकदम खामोश हो गया। वो लम्हे भर को इस कशमाला से मुख्तलिफ लगी जिसे वो गुज़िश्ता 5 दिन से देख रहा था। मैं तुम्हारे ऊपर कभी एतबार नहीं कर सकता। उसे देखते हुए अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मेक द टू ऑफ अस। कशमाला में पिंद हल्के से कंधे झुकाए और आगे बढ़ गई। इसका रुख बालकनी की जानिब था। वो अफसोस और बरहमी से उसे देखता रहा। वो बालकनी का दरवाज़ा खो रही थी। सर्द हवा फिर से अंदर आई।
लेकिन वो इस हवा के लिए नहीं रुका। वो दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। ऑफिस खाली रह गया। बालकनी सर्द थी और हवा ठंडी। वो ज़मीन पर बैठा दीवार से टेक लगाए सर हाथों में कराए रो रहा था। इसका सारा वजूद हिचकियों से होले होले लरज रहा था। माला चंद्र में तासुब से उसे देख ली, फिर नरमी से पुकारा, बीरबल मुझे अकेला छोड़ दो। सर उठाए बगैर गीली आवाज़ में कहा, ओके। वो वापस मुड़ गई। कोई रो रहा हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। इसने भीगा चेहरा उठा के नाराज़गी से कहा था। वो गहरी सांस के पलटी। फिर क्या करते हैं? टिश्यू पकड़ाते हैं। चंद सानिया बाद उसके सामने टिश्यू का डब्बा रख के वहीं बैठ रही। साफ टाइल शुदा फर्श पर वो छोटा सा पेटियो बना था जिसमें कैन का फर्नीचर रखा था और रेलिंग के साथ चंद गमले सजे थे। थैंक यू, बीरबल ने भारी आवाज़ में कहते सर झुकाए टिश्यू निकाले। फिर चेहरा साफ किया, नाक रगड़ा। तुम्हारे पास कभी कोई पालतू जानवर था? बीरबल, नहीं। जब मेरे अब्बा की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी। वो चेहरा उठा के गीली गुलाबी आंखों से उसे देखने लगा। वो इसके सामने आलती पालती के ज़मीन पर बैठी नरमी से कह रही थी, उस वक्त मुझे अपनी माँ से एक ही शिकवा था, काश उन्होंने कभी मुझे एक पालतू जानवर लेके दिया होता। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, एक जानवर हर बच्चे के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवर कुछ अरसे के बाद मर जाते हैं। यूँ बच्चे को मालूम होता है कि मौत क्या आती है, फिर उसे ग्रीफ को प्रोसेस करने का फ़न आता है। बीरबल ने सर दीवार से टकाकर चंद गहरे सांस लिए। वो कब से बीमार है, मुझे क्यों इल्म नहीं हो सका? वो हैरान था, शॉक में था। फिर चौंका, तुम्हें कैसे मालूम? फिर चेहरे पर खफ की तरह उसने सवाल बदला, तुम्हें कब से मालूम है? चंद मिनट पहले से। इसीलिए वो ज़ारा से शादी कर है, इसीलिए वो मालिक की हर बात मानता है। वो इसका इतना ताबेदार है क्योंकि वो उसको खोने से डरता है। आंसू फिर से उसकी आंखें किनारे से फिसलने लगे। और मैंने हमेशा उसको डिसअपॉइंट किया माला। मैं कभी इस काबिल नहीं बन सका कि मालिक मेरी तारीफ़ करता। वो उदासी से मुस्कुराए। अपने बड़ों का अप्रूवल, उनकी तारीफ़ कितना तरसते हैं हम इस सब को बीरबल, बड़े समझते ही नहीं है। मैं इसके लिए कभी माँ नहीं बन सकूँगा। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, हमेशा उसको बुरा भला कहा। बीरबल वो बगौर उसकी आंखों में देख रही थी। तुम जिस तकलीफ़ में हो वो मैंने तुम्हें दी है। मैं चाहती थी कि तुम जान जाओ कि मालिक बीमार है। माहिर तुम्हें इससे बचा रहा था, लेकिन हर इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ़ काटनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम्हें 4 माह बाद मालूम होता तो तुम्हारे पास मोहलत ना होती। मोहलत? बीरबल ने चौंक कर उसे देखा। वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ मोहलत, अब तुम्हारे पास वक्त है। किस चीज़ के लिए? उसने अबरू उठाए। इसकी खिदमत, ख्याल वगैरह। माला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इसको ये बताने के लिए कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। बीरबल ने शर्ट के कफ से आंखें रगड़ी और सर झटका। मैं उससे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं करता हूँ। चंद गहरे सांस लिए, नाक से बलगम अंदर खींचा, बालों में उंगलियां फेर कर इन्हें दुरुस्त किया। एक टिश्यू मजीद निकाला और गौर से उसे देखेगी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, और ना वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने जख्मी निगाहों से माला का चेहरा देखा, वरना अपनी तकलीफ मेरे साथ शेयर करता है, लेकिन नहीं। उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। वो कपड़ों से नादीदा कर छाड़ के उठ रहा था। वो भी साथ ही खड़ी हुई। माहिर इज़ द सन ही नेवर हैड, वो तल्खी से कह रहा था। बीरबल, उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मगर उसके पास जाओ, उससे ये सब कहो जो तुम उसके लिए महसूस करते हो। बातें कह देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। वो इसको देखते हुए कह थी और सर झुकाए इधर उधर की चीज़ें उलट पलट कर रहा था। मैं अब रो नहीं रहा, तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। वैसे निगाहें नहीं मिला रहा था, बल्कि हनूस भी गई थी। माला ने इस बात में सर हिलाया। ओके, मैं फिर आऊँगी। वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। माला, वो बालकनी का दरवाज़ा खोल रही थी जब वो पुकार उठा। उसने पलट के देखा, वो अब उसे ही देख रहा था। आंखें फिर से भीगी हुई थी। थैंक यू। वो मुस्कुरा दी, सर को खम दिया और आगे बढ़ गई।